ਨਮਸਕਾਰ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਥਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਉਨਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਰਜੀਤ ਸੇਨ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਥਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਥਪੁਰ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਥਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖੇੜਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾ, ਹਬੀਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋਲੀ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਥਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਮੈਥਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4:15 ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਪੁਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਅਰਜੀਤ ਸੈਨ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ये आपको कमिट किया है अंदर, और इस कमिटमेंट को डीसी साहब जो है लिखित में देने को आपको तैयार है। दूसरी बात आपको ये कहा है जो इनकी वाइफ है, जिनकी दविंदर की, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पहले कई प्राइवेट स्कूल में काम भी किया है, तो उनकी नौकरी की भी आश्वासन जो है इन्होंने वो सरकारी की आश्वासन जो प्राइवेट नौकरी में इमीडिएट या कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में जो इमीडिएट दे सकते हैं वो तो दे सकते हैं। सरकारी नौकरी का एक प्रोसीजर होता है, वो हम कोई भी आदमी यहाँ पे बैठ के कमिट नहीं कर सकता कि आपको सरकारी नौकरी पक्की यहीं पे लिखित में दे देंगे। कोई गारंटी नहीं देता, मैं भी नहीं देता, कोई नहीं देता, डीसी साहब ने उसके लिए जो है कर्ण मूलक से या कोई कंपैशनेट ग्राउंड पे उसकी एप्लीकेशन और करने के लिए आपको उन्होंने आश्वासन दिया है। पर जो प्राइवेट नौकरी है, जैसे कोई टीचिंग की या इस तरह की नौकरी, वो तो अभी आपको कमिट करके खुद ही बोले कि हम इसकी पूरी आपके लिए करेंगे। तीसरी बात ये कि जो आपके जो देवेंद्र इनकी डेथ हुई, ये किसी कंपनी में काम करते थे, जो वहाँ पे इनके रेगुलर मेडिकल चेकअप और इस तरह की चीज़ें होती थी। उनका आईडी कार्ड जो है हमने ले लिया, हमारे पास है। इनको वहाँ पे भी उस इंश्योरेंस को क्लेम करवाने के लिए जो भी लीगल हेल्प की आवश्यकता है वो हम खुद करेंगे, एम्बेसी में बात करेंगे। जितनी भी इनकी जो कंपनी है वो इनको इंश्योरेंस बनती है, वो तो परिवार को ही जाएगी जो डिपेंडेंट होंगे इनके, चाहे वो वाइफ है चाहे बच्चा है, जो भी है उनको जाएगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे आपका मान लो क्लेम जो नेग्लिजेंस के कारण
मान लो ये जो मृत्यु हुई है उसको सबसे पहले तो हमारे रिपोर्ट है डॉक्टर की वो हमारे पास आएगी, वो इंश्योरेंस हम क्लेम करेंगे और उसका जो पैसा अमाउंट आएगा टोटल वो भी जो है परिवार वालों को ही जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है और उसके लिए जो मान लो अगर किसी वकील का खर्च आता है, किसी का भी खर्च आता है, वो सारा जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू जो है वकील पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जेल। इसके अलावा जो आपको चाहिए वो फौरी राहत की बात की है, वो जो है वो जो कंसर्न क्लिनिक वाला है या कोई है वो आपको देगा। ये 5 बातें हुई हैं जो हम एश्योर कर सकते हैं वो हमने आपको एश्योर किया, जो हम एश्योर नहीं कर सकते उसके बारे में तो हम अभी आपको कमेंट नहीं कर सकते। बाकी हमने आपको चीज़ें बताया, जो हमारी कानूनी कार्रवाई चली है वो चलिए। सीएमओ मैडम यहाँ पे थे, बोर्ड गठित करके जो है इसको हम पूरा चेक करके क्लिनिक की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम कलेक्ट करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमारा आपके साथ अंदर बात हुई और आप लोगों को ये समझना भी चाहिए कि हमारा जो हम कमिट कर सकते हैं वही कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जी फ्यूचर में आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, वो हम अभी नहीं बोल सकते। ये हमारा वो है आपके साथ बात। हाँ सर मेरी बात सुनो, आपने जब ये बात की आप नहीं कुछ क्लेम दिखा सकते तो रात को क्यों बुलाया? 4 बजे वहाँ पर अंदर बुलाया, कभी कह रहे हैं 15 देते हैं, कभी कहते हैं 25, एक डॉक्टर को दिलाएंगे 25, दूसरे डॉक्टर देंगे 50 लाख से आपकी बात होगी। तो हमने उनकी परिवार से पूछा, वो कहते 50 एक को देना, 50 एक को, वो कहते इतना हम नहीं दे सकते। दूसरी बार गया सर, मैं साथ में है गवाह मेरे साथ, ठीक है। दूसरी बार गया, नहीं किससे बात की आपने? रात को सर जो ये भी से सर वहाँ पर वो हमारे फुप्पड़ जी है, जगतार फुप्पड़ जी, उनको बुलाओ, साथ में थे, ठीक है सर, ठीक है। और उन्होंने कहा 50, मेरी बात 50 लाख रुपए जब मैंने बोला ना एक को, जो आपने बात की ना उसकी मैं कैसे बोलूं? सर मेरी तो सुन लो, आपकी सुनी, आपकी सुनी, मेरी भी सुनी, मेरा बात रखने का हक है। 50 लाख मैंने मांगा कि उसकी वाइफ को, 50 लाख उसकी माँ को। इन्होंने क्या कहा कि इतना तो कुछ नहीं है। मैं तो पूछा, फुप्पड़ जी ने पूछा हमारे ने कि आप कितना दे सकते हो? कहता मैं तो मामूली 5-6 लेकर। फिर हमने कहा कि ये नहीं सर होगा, मैं उठ के आ गया। तो इन्होंने फिर बुलाया, कहते 15 लाख वो करते थे सर। इन्होंने कहा पूछो सर, साथ में है कि हम 25 कर सकते हैं, ठीक है, और 25-50 कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बुलाया, साथ में गवाह है सर, मैं अकेला नहीं था, 4 जने थे। ये कहते मैं अपनी साइड, और इन्होंने बाद में जब फिर मैं उनके घर वालों से पूछने गया, वो कहते भी सर ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे जो सच्चाई है सर। उसके बाद इन्होंने कहा कि फिर 60 को मैं फिर गया इनके पास, 2 सियाड़े भी सब मेरे साथ थे, यहाँ के यहीं पर है गाँव के, उन्होंने भी मेरे साथ गया, मैं अकेला नहीं गया। इन्होंने वहाँ पर कहा कि आप देख लो मैं 25-25 दिला सकता हूँ, 60 नहीं मैं दिला सकता। फिर इन्होंने फिर फोन किया, मैं फिर वहाँ पर पहुँचा, फिर वे इन्होंने कहा कि मैं 60, ऐसा भी वो आदमी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं 60 में दिला सकता हूँ। पर अब फिर उसके बाद में फिर बोला कि वो मैं एक डॉक्टर से दिलवा सकता हूँ, पंजाब वाले से मैं पैसा नहीं दिलवा सकता। ये सर आपने बोला था कि नहीं बोला सर आपने मेरे लाके बोला सर, मैं जान देनी है, सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं अपने सर कॉमन सेंस की बात है, आप अपने आपसे बात कह सकते हैं, ये बात जिसको पता ही नहीं कानून के बारे में। नहीं देखो ऐसा ठीक है, एक मिनट, 50 को सर ये 60 को भी मान गए थे। रात को हम लेट हो गए, थोड़ा सलाह करने के फैमिली से करनी है, क्योंकि उसकी माँ से भी पूछना पड़ेगा। मैंने उसकी माँ को बुलाओ, उनकी जो वाइफ है उनको बुलाओ, उससे पूछो कि ये बात हुई। मैं तो आपको कहा उससे पूछो पहले, जो ये बात कमिटमेंट हम कर सकते हैं ना जी, हम वो सर मेरी बात सुनो ना, सरकारी कैसे खर्चे पे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बोल सकते हैं। आपका क्लेम सुनिए, आपका क्लेम उन पे बनता है क्योंकि उन्होंने मान लो नेग्लिजेंट तरीके से जो है उनका ऑपरेशन किया, वो किया, उनका क्लेम बनता है। हम विक्टिम की तरफ से ही एफ आई आर रजिस्टर करते हैं, आप ही की तरफ से हमें एफ आई आर रजिस्टर, एक डॉक्टर पे भी बनेगा, दूसरे डॉक्टर पे भी बनेगा क्लेम। उसके लिए आप जो है क्लेम करेंगे, वकील जो आपको चाहिए होगा वो सरकारी खर्चे पे आएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि वकील का खर्चा हम उठा लेंगे। वकील के खर्चे की बात नहीं है, आपको सिर्फ वकील के खर्चा ही सरकारी नौकरी सर दोगे आप? सिर्फ खर्चा ही नहीं होता ना, कागज भी तैयार करने पड़ते हैं, बहुत काम। ये तो सर ये देखो कैमरे लगे हैं, तो ये तो ऊपर तक बात चल जाएगी। नहीं मैं भी नौकरी तो सर इनकी बदौलत मिल जाएगी। मैं कैमरे की सामने बात कर रहा हूँ सर, आपका क्या आश्वासन है? 15 लाख। मेरा आश्वासन नहीं है ये आश्वासन नहीं है। हम जो आश्वासन देते हैं वो आपको दिया है कि सरकारी खर्चे में बच्चे की पढ़ाई लिखाई, जो इनके नौकरी में मदद, जो इनको जो लीगल हेल्प चाहिए उसकी मदद, वो सब की गारंटी मैं सरकारी होने के नाते ग्रेजुएशन तक कहते ना, मैं ये थोड़ा बोल सर सुनो, ग्रेजुएशन तक कहते ना, मेन पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद नहीं, बाद की भी बोल रहे हैं।
हमें तो बोला मास्टर्स का पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कोर्स तो उसके बाद भी होते हैं ना, उसमें लगते हैं पैसे। अरे मैडम वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक पढ़े लिखेगा तब तक की बात की है, वो तो बोला है। सर सरकारी नौकरी का आपको क्या, जब आपके पास कोई मंत्री आएगा तो आप कह सकते हो कि सर हमारे हमको भी लगा कि आप पैसे इसकी देके सर खाई नौकरी जाते आप उसकी नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी 30 साल के बाद की गारंटी अभी कैसे देंगे हम? अभी कैसे देंगे? 30 साल के बाद क्या गारंटी होगी? पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो मैं बोल ही रहा हूँ, जब तक पढ़ेगा तब तक जो है वो एश्योर किया है आपको लिखित में तो घर का देंगे। खर्चा सर है जी, 3 परिवारों का देखिए खर्चा। काम तो सभी को करना पड़ेगा ना। करेंगे वो तो 10-15,000 20,000 से क्या बनेगा? उसके लिए जो वाइफ है इनकी, उनके इतनी आपकी जल्दी थोड़ी कर नौकरी सकती की, है वो, उनकी अभी तो वाइफ खड़ी की भी नहीं हो नौकरी की सकती बात, वो। यही मैं बोल रहा हूँ। एक तभी साल तो तो ऐसे नहीं खड़ी होएगी तभी वो। देखिए फौरी राहत की बात होती है। फौरी राहत 10 का लाख मतलब ये कितने- होता है, कितने- एक साल में फौरी राहत 10 का लाख मतलब खत्म ये हो होता है कि जाएगा। उसी समय। फौरी राहत का मतलब ये नहीं कि वही है। फौरी राहत का मतलब है कि भविष्य में आपको इंश्योरेंस का पैसा और जो आपका ये कॉम्पनसेशन देंगे, जो आपका क्लेम का पैसा है, वो तो सब परिवार को ही जाएगा। फौरी राहत का मतलब ये होता है कि क्लेम का क्या पता कल है, हो ना हो। वो तो चेक करने पड़ेंगे ना डॉक्टर, कागज में एक मिनट कागज में देखना पड़ेगा। सुनो सर, वो बात की बात है, हाँ। ठीक है। आपको हमने 2 तारीख को FIR करा दी, आपके पास है, हाँ है। ठीक है। आप बिना सबूत के नहीं पकड़ सकते, आप पूछ तो सकते हो कि भाई आपके खिलाफ एप्लीकेशन सुनिए, क्या बात अच्छा है? FIR की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। FIR जो है हमने उसी दिन रजिस्टर की है। उसके बाद उसकी जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसमें एक FSL की विसरा रिपोर्ट डलती है। वो रिपोर्ट जो है जब हमारे पास आएगी, तो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया है वो अपना फाइनल ओपिनियन देगा, जिसको जानकारी है इसके बारे में। सुनो ना मेरी बात, वो नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने कर लिया अभी तक। तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो है हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे हमने मेडिकल बोर्ड गठित किया है, पूछ सकते हैं। वो मैं आप तो कर सकते हैं। आपके जो पूछताछ हम कर रहे हैं, जो अभी तक हमने किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रोसीजर जो बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हमने प्रोसीजर क्या है उसके लिए, अभी CMO मैडम आए थे हमारे साथ। CMO मैडम के एक डॉक्टर की टीम और साथ में पुलिस की टीम जो है जाके क्लिनिक को हमने सील कर दिया था पिछले कल। वहाँ पे अंदर जाके वो भी SDM सर के कहने पर पिछले कल 4 किया बजे है हम कह रहे हैं कि सर इसको सील अरे करो। आपको हमने किया ना सील, वहाँ पे कोई अंदर बाहर वो नहीं तो गया आपके उसके। आए वो SDM सर आप आए तो अरे किया। वो वही बोल रहा हूँ मैं कि उसको हुआ ना, उसके बाद उसके अंदर जाके डॉक्टर्स जो है उसको चेक करेंगे। डॉक्टर्स उसमें जो बताएंगे कि ये चीज़ें जो है ट्रीटमेंट समरी है, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इनके पास पड़ी हैं, वो डॉक्टर्स कलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमको तो डॉक्टर्स की मदद से ही ये पता चलेगा कि CMO मैडम और उनकी 4 पुलिस वालों की अपना डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ पे रेडी है हमारी, वो जाएगी। और बात इसकी बची कि जो हमारा डॉक्टर है, पिछले कल हमारी टीम यहाँ आपके सामने गई थी, यहाँ पे मैथपुर SHO जो है वहाँ पे गया हुआ है। हमने वहाँ पे जो उनके घर पे भी चेकिंग की, रेड की सुबह 5 बजे। अभी हमारे वहाँ पे जो उसका कंसर्न हॉस्पिटल है वहाँ गया है। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम उसको लेके आएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये, और कई हमारे डॉक्टर्स ही नहीं है, कई अगर कोई क्रिमिनल है हम उसको बाकी स्टेट से भी लाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सर लेके आपने हमसे पूछा ना कि क्या बात हुई, हाँ, किस आपने बारे में? उससे पूछा, आपने उससे पूछताछ की? पूछताछ की हमसे, नहीं, तो हम आपने उसको पूछा लाने ना, के लिए गए हैं, तभी तो टीम गई है, मैं यही बोल रहा हूँ। टीम लाने के लिए मलिक डॉक्टर, सर 2 डॉक्टर के नाम है, एक मलिक का, एक चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ तो आपने भेज दिया, मलिक का नहीं, मलिक की लोकेशन अभी नहीं है। मलिक की जो लोकेशन पैसे की बात कर रहे हैं, जो सर पैसे की जो पैसे की बात कर रहे बुलाना हैं, होगा तो बुला सकते हैं, बात करें। जो सर क्या गारंटी है, जो 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो अपनी जेब से थोड़ी दे वही रहे क्या हैं, करता वो मलिक डॉक्टर ही दे रहे हैं, ठीक है। उनसे बात, उनसे आप नंबर नहीं, ये लेना, मैं आपका फर्ज देखिए, बनता कि नहीं? हम जिससे सरकार उससे बात हो रही है, आपका सरकार फर्ज के बनता पास कि बात कस्टडी थोड़ा ना सब नहीं है तो नंबर उसके खाते सर के इन्होंने उसका सामान नंबर बेच लो, बूझ आप के भी करो बात करो ना पैसे, एक बार। इन्हें सामान क्या बेच बात के करना नहीं है हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ना, हम तो कानूनी कार्रवाई उनसे करेंगे। पूछो सही, कानूनी या कार्रवाई आपके करने पास के लिए नहीं, जो व्यक्ति यहाँ आप कह रहे हैं कि हम बिना प्रूफ के किसी को पकड़ नहीं ऑपरेशन सकते, किया, आप हमें तो जिस पूछ रहे व्यक्ति हैं, ने उनसे भी ऑपरेशन पूछो। किया उसके लिए टीम गई है, उसको हम ले आएंगे। हम आपको अभी लोकेशन आपको अगर चाहिए तो मैं लोकेशन बताता हूँ कहाँ पे हमारी टीम, वो अपना काम कर रही है। पर आपको जो इमीडिएट अभी यहाँ पे करना है वो हमारे, उसके लिए आज DC साहब आए थे, उसके लिए जो आपको एसोसिएट किया था उसमें आपको बताया था कि ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई और वाइफ का वो कर सकते हैं। और जो फौरी राहत इन्होंने कमिट की, जो कंसर्न है लोग, वो आपको बताया है। अब ये इसके बावजूद भी आपको कुछ चाहिए तो आपको वो एग्री करना चाहिए, वो समझना चाहिए। हम आपकी पूरी मदद करने के लिए, वही दे हम ऐसे ही वही दे बाकी चीज़ हम ऐसी चीज़ नहीं कमिट कर सकते ना जो हमारे अच्छा हाथ सर, में ये बात सुनो, सारी बात छोड़ो,
वो उनके पास नंबर था ना, वो कहते हैं मेरे बात करके मैं बताऊंगा, सब पता उनको कहाँ आप उनसे बात करें। नहीं देखिए, बात आप करने कॉल के कर लिए सकते हैं कि नहीं सर, ये बोलो किसको पता उनको। नहीं देखिए हम पता है नंबर सर, ले सकते हो सर आपको भी पता मैं है। सरकारी तरीके से कर सकता हूँ, मैं हाँ वो करो, पर मैं आपने नेगोशिएट करने के लिए आप अकेले जाके ले लो, जो मर्जी करें। नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा काम आप आपको नहीं कहते। डीसी साहब जो है आपने आपस मुझे में उनसे पूछा बात करेंगे जो नहीं आपका बयान लिखना पूछा पड़ता है सर, हाँ लिखा सर, आपने पूछा ना। आपका बयान लिखा है हाँ हाँ साथ में जो हाँ हाँ आपने उसके हाँ हाँ ये देखो ऐसा है पूछना तो पूछ सकते हो सर। में किसमें जाना आप यहाँ पे अगर मेरी सर इससे लड़ाई होगी, सुनिए इसलिए रिपोर्ट आपने मुझे दूर आप पूछ रहा था कि अगर हम यहाँ पे जितने पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं वो तो आपसे बात कर रहे हैं, आपका बयान नोट करने के लिए सिर्फ बोलने पे तो नहीं होगा ना। इसका कोर्ट में मैंने और आपने यहाँ सड़क पे बात की, वो कोर्ट में कैसे बताऊंगा? लिखित में आपके सामने कागज जाएंगे, गुमराह तो ये कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर बैठ के अपने बयान देंगे तब तो हम आगे कार्रवाई अगर करेंगे। ये बात आप कल कर लेते तो आज ये कल मैंने बात की थी, कल मैंने बताया था कि आपके बयान नोट 4 बरी बुला के 25 से आगे 50 आपने बोला कभी आपको पिछले कल 4 लाख पिछले कल मैंने यही तो प्रॉब्लम होती है ना। कल मैंने कल सुनो यही तो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको पिछले कल का याद नहीं है, तो इसलिए सर आपने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप इनका वो कर दो। हाँ क्या आप कर दो, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं देखिए जो क्यों नहीं पता नहीं कब होगा वो होगा, हम आपको साल 2 साल लग जाएंगे। मैडम ऐसा है देखो जिसकी जान गई है ना ये उसको वापस ला सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी पता है कितना बड़ा दुख है, पर उसी हिसाब से सोच रहे हैं हम, उसी हिसाब से सोच रहे हैं। ना हमने ऑपरेशन किया ना हमने वो किया, जिस व्यक्ति ने किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ, और हम भी कहीं नहीं जा रहे। पर ये है कि आप लोगों को तो बोले थे नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके ऊपर करेंगे। अगर हॉस्पिटल पूरा का पूरा वो होगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे। वो हाँ है, FIR में तो है वो। दूसरे का आप हम गए वही तो नहीं, मेन अब है, वो एक के बाद एक मैं आपसे जब ये पूछूंगा, बात फिर आप होगी इसका नाम बताओगे, फिर इसका एक पूछोगे, मिनट फिर ये सर, इसका आप नाम मुझसे बताओगे। बात कर लोगे ना, फिर हमसे बात करने से नहीं होता, बात करने से फाइल कोर्ट में नहीं जाती, लिखित में बयान नोट करने पड़ते हैं, उनको लाना पड़ता है तब जाके कोर्ट में। उन्होंने बयान लो नहीं तो हाँ वो करेंगे, उसी लिए टीम गई उसको लेके आएंगी। आप लोग अपने साथियों को समझाओ। चलो नहीं आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, मोटा मोटा एक्सप्लेन इधर आ जाओ छोड़ दो लग गया हुआ महाराज। ठीक है तो लग गया जनाब। डीसी साहब और CMO साहब के साथ आज मैं भी प्रेजेंट था, जो यहाँ पे वार्ता हुई है। 2 तारीख को हमने एक FIR रजिस्टर की थी जिसमें एक व्यक्ति की देवेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उस मामले में FIR करने के बाद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई है। एक बोर्ड गठित किया गया है पुलिस द्वारा, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक में ट्रीटमेंट समरी इत्यादि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कलेक्ट करके जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कंसर्न्ड व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जिनको एक्यूज्ड कहा गया है इसमें, उसके लिए जो है पुलिस टीम हमारी गई है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको जल्दी हम कर लिया जाएगा। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग भी वहाँ पे हमने रेड की और इसको चेक किया और हमारी टीम वहाँ पे अपना काम कर रही है। इसके अलावा जैसे कुछ डिमांड्स थी, जो परिवार है जिनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है उनकी कुछ डिमांड्स थी, उसके बारे में DC साहब और CMO मैडम के और मैं वहाँ प्रेजेंट था, तो उसके बारे में चर्चा हुई है और वो हमने इनके परिवारजनों को भी बताया है। इस बारे में ये डिस्कशन हुआ और हम इसमें अभी पूरी जो इंक्वायरी है उसको कंप्लीट करेंगे जल्दी से। क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से जो मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं? देखिए अभी इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम पूरी संवेदना के साथ जो है हमने सुना और उसके बाद अभी जैसे बच्चा एक काफ़ी छोटा है, 6 साल का बच्चा है और वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जो है हम आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसको वहन किया जाएगा। साथ ही साथ जो है इनकी, क्योंकि इनकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं
तो उनको जो भी नौकरी में मदद हो सकती है, यहाँ पे वो पहले भी कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो उसमें भी आश्वासन दिया है कि वो हेल्प करेंगे। बाकी जो इनकी ये किसी एक विदेश की कंपनी में जो है नौकरी करते थे, कार्यरत थे, तो पुलिस ने उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनके जो आईडी वगैरह हैं, उसको भी कलेक्ट किया है। और जो कंसर्न कंपनी है, इनके जो इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह हैं, उसमें भी हम पूरी मदद करने का जो है आश्वासन दिया है। अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस सामने आती है तो जो भी इनको कानूनी सलाह और हेल्प की आवश्यकता होगी, वो भी सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है कमिट किया गया है। सर, जो हॉस्पिटल उसको सील किया गया है क्या अभी? जी, हॉस्पिटल में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है उनका होना पॉसिबल है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो, ट्रीटमेंट समरी इत्यादि जो है वो पॉसिबल हो सकती है उसमें हो। तो जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें सभी CMO मैडम ने अपॉइंट किए हैं सीनियर डॉक्टर्स, वो और पुलिस टीम जो है जाके इसमें सभी दस्तावेजों को चेक करेगी। सर, जिले में जो है जाम की स्थिति बनी हुई है, आवाजाही अवरुद्ध है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो जाम की स्थिति को खुलवाने के लिए क्या प्रयास? जी, ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को यहाँ पे ये जो हमारा महतपुर में हाईवे है, उसमें प्रदर्शनकारी जैसे हैं आपके आसपास, वो बैठे हैं। इससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज़रूर हो रही है कुछ लोगों को, जो खासकर एम्बुलेंस के बजाय नॉर्मल गाड़ियों में अपने परिवारजनों को PGI वगैरह ले जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो अपना रूट जो है थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रेजेंट है सिचुएशन है। पर फिर भी हम अपने साथियों से जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं और आश्वासन करते हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि ये ना केवल हमारे लिए है बल्कि आम जनता जो बाकी लोग यहाँ से बाहर से आते हैं उनकी भी सहूलियत का एक मुद्दा है। तो हम आपके साथ इन सभी प्रदर्शनकारियों के साथ यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ ही रहेंगे जब तक वो कोई इस तरह का हल ना निकले इस समस्या का। तो कोई मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया? देखिए, ये मुआवजा जो है ये इसके बारे में चर्चा की गई है। अभी विक्टिम पार्टी से और जो दूसरे लोग हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, और जो भी इसका हल निकलता है उसके ऊपर उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है, टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं अपने आप को आपको पता सर, आपने डिस्चार्ज रिपोर्ट की फोटोकॉपी अभी तक टांडा नहीं भेजी सर। कहाँ सर? ठंडे मैं बहुत सर, मैं आज अपने भाई के लिए मैं फाइटर बन के खड़ी हूँ। मैं अब रोना मैंने बंद कर दिया। सर, आपने बताओ, आपने मलिक से डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं ली अभी तक ना। देखो, ऐसे हाइपर मैं हाइपर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा। आपको क्या देखो सर, जब भी हम किसी पेशेंट को रेफर करते हैं, मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ सर, मैंने बहुत सारी सर्जरी असिस्ट करवाई है जी। कभी हम जब सर्जरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, देयर शुड बी अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। उसमें हमारे पास एनेस्थेटिक होता है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अगर हमें नेगेटिविटी साथ लेके चलनी पड़ती है, इन केस को नेगेटिव पॉइंट हो गया तो हम करते हैं। जिस टाइम इस बंदे ने दविंदर सिंह को रेफर किया, इसने उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट, इसने उसका ट्रीटमेंट चार्ट, किसी हॉस्पिटल में हम आगे जा रहे हैं, उनको क्या बताए पेशेंट को क्या हुआ है, इसको क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, ये रिपोर्ट डॉक्टर लिख के देता है, जो हमने आगे जाके देनी होती है जी कि हमारे पेशेंट को ये हुआ, इसको फटाफट से इमरजेंसी में संभालो। सर, इसने उसको तब नहीं दिया क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका था। इसने अपने हॉस्पिटल से डेड बॉडी निकालने के लिए सारा कुछ किया। इसने आज तक, अभी तक, हम कल 4 बजे हम बैठे थे, हमने पुलिस वालों से गुजारिश की थी कि हमें और पहले कुछ नहीं चाहिए, हमें आप डिस्चार्ज रिपोर्ट, ट्रीटमेंट चार्ट है जो वो हमें अवेलेबल करवाओ। ये सर हमें वही अवेलेबल नहीं करवा रहे, क्योंकि जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा हमें टांडा से मेडिकल रिपोर्ट है जो वो नहीं मिलेगी। जब मलिक क्यों भागा? मलिक तब भागा जब मलिक को पता था कि हमने अंदर पेशेंट मारा है, हमारी गलती है, तब हम भागते हैं। अगर मलिक ने नहीं मारा था, मलिक ने मीडिया को जवाब दिया है कि जी दविंदर सिंह की सर्जरी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद उसको हार्ट अटैक हुआ। ये मलिक के बयान है, जबकि दविंदर सिंह है जो वो हार्ट डिस्प्लेट की वजह से मरा है और इन्होंने मारा है उसको। ये अब पुलिस वाले बोल रहे हैं जी वो मलिक नहीं मिल रहा है जी, वो नहीं मिल रहा है। आपको भी पता है कि अगर आप लोग ढूंढने पे आओ तो सब कुछ मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ खड़े होके करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मैडम, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज है जो वो, अब जब भगवान दिमाग देता है तो एक दिल देता है जिसमें भावनाएं होती हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप उनको जगाओ, आप यहाँ पे खड़े नहीं रहो, आप मलिक को ढूंढो,
आप हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट लाओ, हमारे हाथ में प्रूफ आएगा कि हमारे भाई का मर्डर हुआ है, तब हम कुछ करेंगे सर। 5 साल का बच्चा, हैंडीकैप्ड मदर, कैसे होगा सर? मैं वही बोल रहा हूँ। मैं सर आपको सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे, मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, आप सुनो नहीं, आप करो कुछ सर, अब उठो, आप कुछ करो। जब मैं डेड बॉडी लेके रेफर किया ना, मलिक भाग गया तो एनेस्थीसिया वाला नहीं भागा, कोई ENT वाला नहीं भागा सर। उसने मेरे को बोला कि आप टेंशन मत लो, आप डेड बॉडी लेके उधर जाओ, आपको जो हुआ जो रिपोर्ट हम आपको शाम को दे देंगे, ठीक है? कल आपका वो आया आदमी क्या था, कल कौन SP है, उसने प्रेस से डाला, तब भी आपको उसने रिपोर्ट नहीं, हमको SP को भी रिपोर्ट नहीं दी। कहाँ पे है जो ऐसा ये क्या नाम था? सर हॉस्पिटल वही है, मलिक गया है, आप चलो, आप 10 बंदे चलो, मैं एक चलूंगी आपके साथ, उसके हम किसी रिकॉर्ड को और हाथ नहीं लगाएंगे, हम देविंदर सिंह का रिकॉर्ड लेंगे। आप हमारी बात सुनाओ सर, आप मैं ये बोल रहा हूँ हमारी टीम FIR होगी, सर FIR परसों से हो गई है, फिर तब से आपसे एक फाइल नहीं ली गई, आप हमें क्या इंसाफ दिलवाओगे ये बताओ। नहीं आपको किसने बताया कि फाइल कहाँ है? सर फाइल आप आप देख लोगे ना। सर फाइल वो डॉक्टर यहाँ खुद बहस लेके कर- गया है। मेरी बात सुन लेना, हाँ जी, यहाँ SP हाँ कोई नहीं जा रहा कि मामला ग्रेविट, ठीक है? अब आपकी बात अगर आपने कुछ बोलना है तो आप CMO मैडम आपकी बात सुनी जाएगी। अब पहले जो फैमिली के लोग हैं उस रात क्या हुआ वो पूछ रहे थे, सर मैं वही आपको बंद थोड़ी कर रहे हैं, आपको भेज देंगे। हम जाएंगे सर, हम सबके सामने जाएंगे। मैं क्या बोलूँ आपको, परसों से वो बंदा डेड है, परसों से है ना सर, परसों से एक डिस्चार्ज रिपोर्ट, एक जो रेफरेंस रिपोर्ट, वो पुलिस अभी तक हमें अवेलेबल नहीं करवा पाई है जी, वो अवेलेबल करवा पाई है। हमें मलिक कब मिलेगा, हमें ENT वाला कब मिलेगा, बस ये बताओ। जब हमें अभी तक डिस्चार्ज रिपोर्ट, रेफरेंस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिल रही, तो हमें और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, आप बताओ। ऐसा नहीं होगा सर, आप यहाँ मत खड़े रहिए, यहाँ पे किसी के पास कोई बम नहीं है, कुछ नहीं है जो फट जाएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप लोग मलिक को ढूंढो, आप लोग ENT वाले को ढूंढो जिसने शरेआम मर्डर किया। मैं फिर बोल रहा हूँ टीम में, अब आप यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तो पुलिस में तो आना ही है, आप 10 बंदे, मैं बोल रहा हूँ आपकी समस्या के लिए खुद SP साहब, DC साहब, CMO जिले के सबसे बड़े अधिकारी ये लोग आए हैं, सुन रहे हैं आपकी बात बस। और अब जो आप अरेस्ट की बात बोल रहे हैं वो 2 टीम हैं पीछे, वो आपको कई चीजें भाई साहब देखो ना, रातों रात थोड़ी अब वहाँ जाके ढूंढेंगे। अब जो बंदा जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि अगर उनके मन में जो होगा वो बैठे रहेंगे, वो चले गए होंगे जब तक चले गए होंगे ना, तो पुलिस का ये काम तो नहीं है कि घर में बैठा मिला तो ही हम उठाएंगे। तो ढूंढ रहे, मैं वही बोल रहा हूँ, रातों रात थोड़ी चीजें हो जाएंगी। अब कल गए हैं, ढूंढ रहे हैं, लोकेशंस ले रहे हैं, हर का जो चौकीदार यहाँ का सब इंस्पेक्टर वो पीछे है, वो रूपलाल वो गए हुए, रूपलाल अकेला गया हुआ, 3 बंदे हैं सर, मर्डर एक बंदे ने नहीं करा, अकेला थोड़ी गया हुआ, मलिक है, साथ में एनेस्थीसिया वाला है, साथ में ENT वाला है। मैं बोल जो FIR हो गई, अब FIR जब हो गई है तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी साथ साथ हो रही है। जो टीम्स है हमारी, 3 टीम लोकेशन ले रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम पेशेंस करो सर। पेशेंस आप बताओ, आप आज मीडिया के सामने बताओ कितनी देर पेशेंस रखे, उतनी देर हम में से कोई नहीं उठने मैं बोलने वाला बोलेगा। कोई नहीं हूँ, SP साहब बताइए आप जो भी आपकी ग्रीवेंस है, आपको बारी बारी से बुलाना सभी को, ये तो आप ये बताओ ना, आप अपनी टीम से आपने कब कांटेक्ट करा, आप अपनी टीम से कांटेक्ट करो, आप ठीक आप लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं SDPO बोल रही हूँ, मुझे बुलाया है इधर लॉ एंड ऑर्डर, जो आप ये रोड वगैरह जाम हुआ उसके लिए, बाकी केस में क्या हो रहा है वो SHO है वो बता पाएगा, एडिशनल SP आके, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप उनको बोलो कि जो हमारी सर्च टीम आपकी गई है, बताओ आपने कहा, मैं आपको एडिशनल SP साहब से मिला दूंगा, जो आपकी ग्रीवेंसेस है वो कर ऊपर, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी है, जो अंदर बातें कर रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ घूम लगा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अभी पुलिस सर, अगर पुलिस अपना काम करती है तो हम बेवकूफ पुलिस कर रही है काम, आज आपको पता तक नहीं क्यों आज तक आप देखो 36 साल की एज हो गई, आपने देखा सर वो कैसे घूमते हुए हमें, या तो ये बताओ कि मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस असंवेदनशील, पुलिस केयर नहीं कर रही, फिर तो आप पुलिस को बोलो पुलिस केयर नहीं कर रही है। चलो अब ये पुलिस केयर नहीं कर रही है,
उन्ना पुलिस बिल्कुल सो रही है सर। उन्ना पुलिस ने अभी तक रेफरेंस रिपोर्ट की फोटो कॉपी हमें अवेलेबल नहीं कराई। रुक उन्ना जाओ, पुलिस हो सकता है- परसों से कब करवाएगी, कब? आपने किसको कॉन्टेक्ट किया? हमने सबको, हम कल से एसपी सर को भी हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमें और कुछ नहीं, पहले हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट जो उसकी ट्रीटमेंट चार्ट है वो दिलवाओ। मैंने खुद एसपी सर से बात की। हो सकता है ले ली, थोड़ा सा पेशेंस ले ली, अगर आपने ले लिया ना सर, अगर ले ली हो, मिल जाएगा। ले ली होगी तो टांडा क्यों नहीं भेजी? क्यों मेडिकल रिपोर्ट है जो वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्यों इशू नहीं हो रही है? अब देखो ना, अब मैं जब मुझे चीज़ों का पता नहीं है, मैं वो फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एडिशनल एसपी साहब बंदे हैं, उनसे मैं बात करवा दूंगा। पर ये इस तरह से नहीं कि हम इस तरह से हम सब करेंगे, सब मैं आपको चलो वो मैं सब करूंगी। मैं सबसे पहले खुद को आग लगाऊंगी। मेरे छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे हैं, 2 ट्विन, मैं खुद को आग मैं लगाऊंगी। सबसे पहले अपने भाई की डेड बॉडी के पास लगाऊंगी मैं खड़े होके मैं, और उसका जिम्मेवार है ना जो वो आप लोग हैं, जो आप हैं। ऐसा मैं करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरा भाई था, वो मेरा बाप था, वो मेरा फ्रेंड, वो मेरा सब कुछ था। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग निर्णय नहीं कर रहे कि जो हुआ वो गलत है। सर गलत हुआ तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पुलिस हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।